नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इन दिस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। So the first question of this exercise is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. So what is the number? So here we don't know the number, means we are going to take that number as x. Okay, so let the number as x. Okay, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है तो इस नंबर को आप x लेट करेंगे. Now according to question it is saying that you subtract 1 by 2 from a number. So 1 by 2 number को हमने x लेट किया, so we will subtract 1 by 2 from x and this result you will multiply by 1 by 2 जैसा क्वेश्चन में कहा गया है. So you will get 1 by 8 here. Very simple. Now you solve the equation. जैसे normally आप solve करते you will find the value for x. Okay. Now for we will solve bracket. So x into 1 by 2 will be x by 2. Then minus 1 by 2 into 1 by 2 will be minus 1 by 4, which is equals to 1 by 8. Now we have to transpose 1 minus 1 by 4 to RHS side. You will get plus 1 by 4. Now you will take the LCM. 8 and 4 का LCM will be 8 only. So 1 plus 2, this ये normal addition है fraction का, वो आप सबको आई होप आता ही होगा. नहीं अगर आता है you can see the video of addition of fraction of grade 7. Okay, so 3 by 8 here, then you will get 3 into 2. obviously 2 divide में है तो इधर जाके multiply हो जाएगा. so you will get, now you can simplify, 2 1s are 2 4s are, so you will get 3 by 4. so finally the number is 3 by 4. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम इक्वेशंस का सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. बेसिकली जो आप इक्वेशंस है कैसे आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में यूज़ करते हो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग को समझ आ जाएगा. ठीक है. सो द सेकेंड क्वेश्चन, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Very simple. Length और breadth हमें नहीं पता है, but you can see there is a one hint that 2 meter more than twice its breadth. यानी कि अगर आपने breadth को let किया, let breadth as x. Okay, all are in meters, so we'll write x meter. So length will be, according to question, length is what? Twice. 2 more than means 2 plus more than twice its breadth. तो breadth क्या x है तो x का twice. This will be in again in meter. ठीक है. Now you know the perimeter is given. So perimeter of the pool is 154 meter. And this is in rectangular shape and we know that perimeter of rectangle is 2 into L plus B. ये सबको पता होगा. So that is 154. Now put all the values. So you will get L as 2 plus 2x and your B is x. Okay. So is equals to 154. Now solve this 2 into, in the bracket you will get 2 plus 3x. This is plus only. So this will be 154. Now 2 into 3, you will open the bracket, so 2 into 2 will be here 4, not 2. So we'll write 4 only here. Okay. So this will be 4 plus 6x. जब आप bracket open करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. So now you will keep 6x here and you will transpose 4 to RHS side, so you will get 150. 6 is equals to 150. So finally x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? x will be 150 upon 6 which is equals to 25. ओके. सो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 25 आई है तो आप देखोगे कि आपने x किसको लेट किया था? x इज़ वॉट योर ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ इज़ 25 मीटर, बट लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? x की वैल्यू पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x 25 एंड यू विल गेट 52 मीटर. ठीक है. तो ये आपका आंसर आएगा लेंथ एंड ब्रेथ. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा. बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ट्राई करिए. कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Now question number 3, the base of an isosceles triangle is 4.3 centimeter
perimeter of the triangle is 4 2 upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? Now equal sides already saying, मतलब ये है कि क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 इक्वल साइड्स होते हैं. सो इफ़ यू आर राइटिंग ए बी सी, कैन सी दिस बेस इज़ 4/3 सेंटीमीटर और आपको ये रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी है. ठीक है, तो इन साइड्स को हम क्या लेट करेंगे, लेट द इक्वल साइड्स एज x, यानी कि दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी. ठीक है, सो यू नो द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, sum of all sides. So we have the perimeter that is 4 2 upon 15 centimeter and which is equals to x plus 4/3 because ये दो sides क्या होंगी, x होंगे जो हमने let किया है. So now solve this mixed fraction, you will get 62 upon 15 which is equals to 2x plus 4 upon 3. Now transpose this 4 upon 3 to this side, so you will get like this and equals to 2x. Okay. Now the LCM of this will be 15, so 62 minus 20 which is equals to 2x. Now 62 minus 20 will be 42 here, so 42 upon 15 which is equals to 2x. अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. So x will be 42 अपॉन 2, देखिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा विथ 15 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाना चाहिए, तो 15 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 21 ज़ा कैंसिल. अगर आप और सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो 3 7 ज़ा एंड 3 5 ज़ा. तो फाइनली जो x की वैल्यू आई है दैट इज़ 7/5 मीटर एंड विच इज़ दिस साइड, नॉट मीटर, सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये क्या होंगे जो हमारे इक्वल साइड्स है दैट इज़ 7/5 सेंटीमीटर. Now question number 4, sum of two numbers is 95. Okay, if one exceeds the other by 15, find the numbers. बहुत easy है. So let the number, we don't know the number, so let the number as x. और जो उसका second number है, one exceed the other by 15, so second number क्या हो जाएगा, second number will be, this is only one c here, second number will be x plus 15. ठीक है, so and the sum of two numbers, so according to question it is saying that दोनों का sum यानी कि x plus 15 ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, दोनों का सम किसके इक्वल है, 95 के. सो दिस विल बी x plus 15 ना, you will get 95. so after adding it will be 2x, 15 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 95 minus 15, so you will get 2x is equals to 80. सो x विल बी 40. तो आपका फर्स्ट नंबर तो 40 आ गया, तो सेकेंड नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 40 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 55. ओके, सो एक नंबर 40 है और दूसरा नंबर क्या आ गया, 55. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स एंड द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स. सो बहुत सिंपल है, इसमें आपको रेशियो को एक्सलेट करना है. सो लेट रेशियो बी x. okay, so therefore the numbers are 5x and 3x. okay, or they differ by 18, तो according to question it is saying that 5x minus 3x दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है. so you will get 2x is equals to 18, so x will be 9. x की वैल्यू आ गई 9. कितना सिंपल था. अब आपको ये नंबर्स फाइंड करने हैं. सो देयरफॉर द नंबर्स आर, आपके नंबर्स क्या हैं, 5x हैं एंड 3x हैं. सो द नंबर्स आर 5x विच मीन्स 5 into 9 विच इज़ इक्वल्स टू 45 एंड देन 3x विच मीन्स 3 into 9, सो यू विल गेट 27. आ गया आंसर. ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ आ रहे होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? So आपको consecutive integers लिखने हैं. So if you are taking let the first integer, अगर आप x let करो, let the first integer as x. okay, so you will write the 3 consecutive integers में जो आपका second integer होगा, second will be x plus 1 and then you will write third.
So third integer will be x plus 2. ठीक है. So according to question x plus 1 तीनों का जो नंबर का सम है ये इक्वल है किसके, 51 के. अब आप सारे लाइक टर्म्स को ऐड करिए तो ये 3x plus 3 इज इक्वल्स टू 51 हो जाएगा. एंड 3x इज इक्वल्स टू 51 minus 3 which is equals to 40. 11 minus 3 is 8, so 48. x will be 16 here. ठीक है, 16 3 का क्या होता है 48. तो कितना सिंपल था. अब आपको 16 आंसर तो मिल गया, लेकिन आपके नंबर्स क्या हुई, ये 16 हो जाएगा, ये 16 plus 1 17 हो जाएगा, और ये 16 plus 2 हो जाएगा 18. तो द नंबर्स आर 16, 17 एंड 18. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. Now question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. अब देखिए sum of 3 consecutive multiples of 8 बोला है. तो अगर आप first multiple let the first number as 8. अगर एक 8 है तो सॉरी x लेट करेंगे ना. अगर आपका एक x है not 8. ओके, सो यू विल लेट दिस as x. तो बाकी के मल्टीपल्स क्या होंगे, जो आप इसका सेकंड होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव, मैं सारा एक साथ ही लिख देती हूँ. 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स विल बी, एक तो x है, दूसरा हो जाएगा x plus 8 एंड x plus 16. बहुत सिंपल है क्योंकि आप उसी के फैक्टर्स, उसी के मल्टीपल्स को यूज़ करेंगे. तो अब आपसे कहा गया इनका सम, यानी कि x plus 8 देन x plus 16, इनका सम किसके इक्वल है, 8 8 8 के इक्वल है. ठीक है. सो फाइंड द मल्टीपल्स. तो चलिए ऐड करते, तो ये हो जाएगा 3x plus 8 plus 16 क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 888. सो 3x इज इक्वल्स टू 888 minus 24. So what you will get here, 3x is equals to, after subtracting you will get 864. अब ये 3 से डिवाइड होगा. सो 864 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे x will be 3 2s are 6, 5s are 15. Okay, and then you will get so this will be 3 2s are 6. Okay, then 8s are 24 and then you will get again 8s are 24. Okay, so this is the value of x. ये तो आई x की वैल्यू. अब आपको बाकी के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे. जैसे x की वैल्यू तो ये आ गई, फिर इसके लिए आप इसमें क्या करेंगे, x plus 8 के लिए 8 ऐड कर देंगे. देन यू विल फाइंड x plus 16 और आपको 3 यहाँ पे मल्टीपल्स मिल जाएंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे. ठीक है. Now the last question of this video. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, they multiplied by 2, 3, 4 respectively and they add up to 74. Find these numbers. So let's write, let the 3 consecutive integers, let the 3 consecutive integers are, क्या हो जाएंगे वो, x plus 1 एंड x plus 2. सिंपल. अब आपसे ये कहा गया कि उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है. मतलब ये है कि आपने पहले x लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एम राइटिंग x, देन x plus 1 लिया गया है एंड देन वी हैव टेकन x plus 2. ठीक है. नाउ इट इज सेइंग दे मल्टीप्लाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली. मतलब ये बोला गया है कि पहले इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से किया है और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है. एंड इनका एडिशन किसके इक्वल है, 74. इसलिए मैंने सबके बीच में एडिशन का साइन लगाया था. ठीक है. अब देखिए ये हो जाएगा 2x, दिस विल बी 3x plus 1, 3 plus 4x plus 4 2s are 8 which is equals to 74. अब लाइक टर्म्स को ऐड करिए. सो 2 3 5 एंड 4 9x हो जाएगा एंड दिस 8 3 विल बी 11 इज इक्वल्स टू 74. नाउ 9x 74 सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा इससे 63 एंड x विल बी 7 के 9 7 से क्या होता है 63. फाइंड दीज नंबर्स. तो x तो हो गया 7,
ये हो जाएगा 8 एंड दिस विल बी 9, आ गया 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको नंबर फाइंड करना है। सो आई होप आपको वीडियो में जो सम हमने किए वो समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।